ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅੱਗ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 63 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ। This is a horrific, painful moment for the city of New York. And the impact of this fire is going to really bring a level of just pain and despair in our city. The numbers are horrific. This is a painful moment for us. And the men and women that live here, not only in the Bronx, but throughout this city. This is going to be one of the worst fires that we have witnessed during modern times here in the city of New York. Thank you to the men and women who went in this building. Some of these firefighters, their oxygen tanks were empty and they still pushed through the smoke. You can't do this if you don't feel attached to the city and this community. And I really want to thank them for putting their lives on the line to save lives. Over 30 people are in the hospital, 19 deaths. 9 of them are children, are babies that we lost. And we're all feeling this. And we're going to be here for this community to help them navigate through this. Many of these young children went to schools. We will have a social and emotional support at their schools to help the classmates. We're here as well with the Red Cross and OEM. Is going to coordinate together to get housing and also some of the emergency needs that the people who experience this trauma experience. And it's so important that we have the faith-based leaders here. This was a large Muslim population. Sheikh Musa is here that knows many of the residents. They came from Gambia. And we want to make sure that we're sensitive to the cultural needs. The ME's office is going to coordinate to make sure that we respect the burial rights of the Muslim community as well as others. So our message is clear today. During a tragedy, we are going to be here for each other. ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਮੀਸਨ ਗੈਰੇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਬੋਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 32 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 20 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਨਾਸ ਲੇਕ ਤੇ ਲੋਕ ਬੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚਟਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੋਟਸ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਸ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਕਰਨਲ ਐਡਗਾਰਡ ਏਸਟੇਵੋ ਡੀ ਸਿਲਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਗੈਰੇਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰੋਮੂ ਜੇਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕੈਪੀਟੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਫਰਨਾਸ ਝੀਲ ਦੇ ਚਟਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜੇਮਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੋਤਾਖੋਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ JFK ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੋਣ। 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ JFK ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਨ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੋਚਿਓ ਜੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਗੱਲ? ਯਾਰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਜੇ? ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਲਤਾੜਿਆ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ। ਓਏ ਭਰਿਓ ਲੋਗੋ, ਕੱਢ ਲਓ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਆ, ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੇ किसी ने साढ़े दी सोचा है तो जरूर जी की फतेह। आज हम सब अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर, अरविंद केजरीवाल जी के सरकार चलाने के तरीके पर और दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया उसको उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी कैसे करके दिखाए, दिल्ली में लोगों ने वोट की ताकत से जो करके दिखाया वो उत्तराखंड में वोट की ताकत से कैसे हो सकता है, इस पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप सब जानते हैं कि 35 दिन बाद, आज से ठीक 35 दिन बाद यानी 14 फरवरी को उत्तराखंड में नई सरकार के लिए चुनाव होना है। अब यह कोई खाली नई सरकार के लिए चुनाव नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के स्कूल कैसे होंगे, उत्तराखंड के अस्पताल कैसे होंगे, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन रुकेगा कि नहीं रुकेगा, इसका चुनाव है। 21 साल पहले एक बहुत बड़े महान आंदोलन से उत्तराखंड राज्य का जन्म हुआ। उत्तराखंड के लोगों ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे, उसके लिए अपनी कुर्बानी दी, खून पसीना बहाया। लोगों ने अपनी नौकरियां, व्यापार छोड़ के, घर परिवार छोड़ के, सुख सुविधाएं छोड़ के आंदोलन चलाया कि लखनऊ बहुत दूर है, सरकार को उत्तराखंड तक लाया जाए, पहाड़ों तक लाया जाए, गांवों तक लाया जाए। लेकिन 21 साल पहले जो कुछ हुआ उसका फायदा उत्तराखंड में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़ के किसी को नहीं मिला। 21 साल से उत्तराखंड के लोग, आंदोलन चलाने वाले आंदोलनकारी, अपने उत्तराखंड राज्य को अलग करवाने वाले आंदोलनकारी, उत्तराखंड के लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। उनके हाथ कुछ नहीं लगा, उत्तराखंड के लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा। जितने बदहाल स्कूल पहले होते थे उतने ही बदहाल अब हैं। 21 साल पहले जितने बदहाल अस्पताल होते थे उतने ही बदहाल अब हैं। पलायन जिस गति से 21 साल पहले चलता था उससे ज्यादा अब चल रहा है। इतना जरूर हुआ कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के नेता माला माल होते चले गए। उत्तराखंड में 5 साल कांग्रेस ने लूटा, 5 साल फिर बीजेपी ने लूटा, फिर कांग्रेस ने लूटा। जनता को गुस्सा आया, जनता सरकार बदलती थी, दूसरी सरकार लाती थी, दूसरी पार्टी की सरकार लाती थी, दूसरी पार्टी भी यही करती थी। तो लगातार लूट का यह सिलसिला चल रहा है 21 साल से। इस सिलसिले को, लूट के इस सिलसिले को रोकने के चुनाव है ये। हमने जिनको सत्ता की चाबी दी उन्होंने आपस में सेटिंग कर ली कि 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे, 5 साल तुम लूटो, 5 साल कांग्रेस लूटेगी, 5 साल बीजेपी लूटेगी, 5 साल कांग्रेस लूटेगी। इस लूट की म्यूजिकल चेयर को बंद करने का चुनाव है। यह सिर्फ आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति या झाड़ू पे बटन दबाने का चुनाव नहीं है, बल्कि इस बात का चुनाव है कि उत्तराखंड के युवाओं के सपने अब सच होंगे या 21 साल पहले जिस तरह से धोखा दिया जाता रहा था और 21 साल से जिस तरह से धोखा दिया जाता रहा है उस तरह से ही उसको छोड़ना पड़ेगा। आप सोच के देखिए, अगर 21 साल में बीजेपी और कांग्रेस ने अगर सोचा होता, अगर कुछ किया होता 21 साल में कांग्रेस और बीजेपी ने, तो आज पहाड़ पे बसने वाली महिलाएं प्रसव पीड़ा में दम नहीं तोड़ती। अगर 21 साल में कांग्रेस और बीजेपी वालों ने कुछ किया होता तो आज उत्तराखंड के लोगों को अपना इलाज कराने के लिए अच्छे अस्पताल मुहैया हो गए होते। अगर उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस ने 21 साल में कुछ किया होता तो आज उत्तराखंड के स्कूल इतने शानदार होते कि उत्तराखंड के किसी आदमी को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्तराखंड से बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि पूरे देश में लोग इस बात के लिए लालायित रहते, इस बात के लिए जान लुटा रहे होते कि हम अपने बच्चों को कैसे उत्तराखंड में पढ़ाएं। इतने बढ़िया वातावरण में, इतने बढ़िया पर्यावरण के बीच अच्छी शिक्षा, देश के कोने कोने से लोग वहां पढ़ाने आ रहे होते, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अगर इन्होंने आज कुछ किया होता कांग्रेस और बीजेपी ने पिछले 21 साल में, तो उत्तराखंड से इतना पलायन नहीं हुआ होता जितना पिछले 21 साल में हुआ। 21 साल पहले तो हम कह सकते हैं कि साहब लखनऊ बहुत दूर था, पॉलिसी नहीं बन पाती थी, पॉलिसी गांव तक नहीं आ पाती थी, पहाड़ तक नहीं आ पाती थी। लेकिन जब तो पहाड़ की सरकार आ गई, उत्तराखंड की सरकार आ गई, पहाड़ी राज्य की अपनी सरकार आ गई, उत्तराखंड के लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार आ गई, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने कुछ नहीं किया। पलायन होता रहा, और बल्कि पलायन उससे ज्यादा हुआ। रोजगार नहीं मिला लोगों को। बिजली, उत्तराखंड राज्य जहां बिजली बनती है, जितने संसाधन है,
वहां लोगों को फ्री बिजली नहीं मिल सकती क्या? अगर दिल्ली के 2/3 लोगों को फ्री बिजली मिल सकती है तो उत्तराखंड के लोगों को क्यों नहीं मिल सकती? 21 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? केवल और केवल नेताओं ने अपने बैंक अकाउंट भरे, उन्होंने अपने घर भरे और पार्टियों के चंदे भरे, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिला। आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो 21 साल में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बैंक अकाउंट उठा के देख लीजिए, उनके बैंक बैलेंस उठा के देख लीजिए, इनके पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई? कांग्रेस के नेताओं के पास भी और बीजेपी के नेताओं के पास भी इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया? 21 साल में इन्होंने उत्तराखंड को लूट लूट के अपना घर भर लिया है। मैं आज आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, पार्टी कार्यकर्ताओं को भी और उत्तराखंड के वोटर्स को भी, कि अब उत्तराखंड को बदलने का समय आ गया है, उत्तराखंड को फिर से खड़ा करने का समय आ गया है। 14 फरवरी का दिन झाड़ू पे बटन दबा के आप उत्तराखंड की सिर्फ राजनीति को नहीं बदल रहे होंगे, उत्तराखंड को बदल रहे होंगे। आज उत्तराखंड को एक नया विकल्प मिल रहा है। अभी तक कांग्रेस और बीजेपी के पास के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस और बीजेपी को, मतलब कांग्रेस को हटाओ तो बीजेपी, बीजेपी को हटाओ तो कांग्रेस, कांग्रेस को हटाओ फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, ये विकल्प था। आज आम आदमी पार्टी आ गई है, अरविंद केजरीवाल जी आ गए हैं, जिन्होंने दिल्ली में इतना करके दिखाया है। आज वो विकल्प हैं। तो आज आप सोचिए, वोट देने से पहले एक बार सोचिएगा कि उत्तराखंड में 2-3% बच्चों को तो शानदार एजुकेशन मिलती है और 97% बच्चों को बिल्कुल काम चलाऊ एजुकेशन मिलती है, मिलती नहीं है। 97%, 98% उत्तराखंड के बच्चे 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, 8वीं क्लास में कंप्यूटर का सी नहीं लिखना जानते हैं और 3% बच्चों को ऐसी एजुकेशन मिल रही है जो बैठ के कंप्यूटर चला रहे होते हैं और कोडिंग कर रहे होते हैं। इसको कौन दूर करेगा? अगर उत्तराखंड की सरकार दूर नहीं करेगी तो क्या? अगर 100% बच्चों को अच्छी एजुकेशन चाहिए तो कौन दिलवाएगा? अगर उत्तराखंड में बीमार होने वाले हर व्यक्ति को अच्छा इलाज चाहिए तो कौन दिलवाएगा? अगर पहाड़ में रहने वाली कोई बेटी, हमारी कोई बहन गर्भवती होती है तो वहीं पे उसको कौन इलाज दिलवाएगा? उसको प्रसव पीड़ा में दम ना तोड़ना पड़े। सरकार करवाएगी। लेकिन कौन सी सरकार करवाएगी? कांग्रेस की करवाएगी? नहीं करवा सकती, हमने उसको वोट देके देख लिया। बीजेपी की करवाएगी? नहीं करवा सकती, हमने उसको वोट देके देख लिया। केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी की सरकार ये करवा सकती है। तो 14 फरवरी को इस चीज के लिए इस्तेमाल करें कि हम उत्तराखंड की कौन कौन सी सुविधाओं के लिए वोट देंगे। बीजेपी और कांग्रेस कुछ नहीं दे सकती। अगर उत्तराखंड में अच्छे स्कूल चाहिए, अगर उत्तराखंड में अच्छे अस्पताल चाहिए, पलायन रोकना है, युवाओं को रोजगार देना है, उत्तराखंड के संसाधनों का सदुपयोग करते हुए उत्तराखंड की तरक्की का नया रास्ता खोलना है, उत्तराखंड की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है और इतना आगे बढ़ाना है कि उत्तराखंड देश की इकोनॉमी में योगदान दे सके, ना कि देश से योगदान ले, पूरा देश को उस पर गर्व हो सके कि हमारा उत्तराखंड हमको योगदान दे रहा है। तो ऐसे उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए एक अवसर आया है 14 फरवरी का। आज इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर बदहाल हो चुके स्कूलों को संवारना है तो झाड़ू पे वोट दीजिए। अगर उत्तराखंड को हक दिलवाना है जिसके लिए उत्तराखंड के लोग लड़े थे तो उत्तराखंड को वोट दीजिए। बंजर हो चुके खेत खलिहानों की खुशहाली को वापस लौटाना है तो झाड़ू पे वोट दीजिए, आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। खंडर और वीरान हो चुके गांवों को फिर से आबाद करना है, पलायन हो चुके से खाली हो चुके गांवों को फिर से आबाद करना है तो आप झाड़ू पे वोट दीजिए 14 तारीख को। युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करनी है उत्तराखंड में तो झाड़ू पे वोट दीजिए 14 तारीख को। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड को दुनिया के मानचित्र पर लेके आना है, देवभूमि को पूरी दुनिया के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाना है तो झाड़ू पे वोट दीजिए। उत्तराखंड के लिए झाड़ू पे वोट दीजिए। मैं आपसे आखिर में कहना चाहता हूं कि आपने दोनों पार्टियों को 10-10 साल दे दिए। एक मौका केजरीवाल जी की राजनीति को देके देखिए, जिस तरह से दिल्ली में बदला वैसे बदलेगा। एक मौका देके देखिए और काम ना करें, आपको लगे कि काम नहीं किया तो 5 साल बाद वोट मत दीजिएगा। ये कोई कांग्रेस और बीजेपी का नेता नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है कि चुने जाने के बाद उनको काम नहीं करना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इस दावे के साथ कह रहे हैं कि जब मौका देते हैं तो जैसे दिल्ली में करके दिखाया वैसे उत्तराखंड में भी करके दिखाएंगे। घोषणा करने वाले नेताओं पे भरोसा मत करो, गारंटी देने वाले और करके दिखाने वाले नेताओं पे भरोसा करो। 14 तारीख का दिन उसी का दिन है। ये चुनाव का और खाली वोट डालने का दिन नहीं है, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य, उत्तराखंड के एक एक आदमी के भविष्य पर, अच्छे भविष्य पर मोहर लगाने का दिन है। झाड़ू पे बटन दबाएंगे तो उस पर मोहर लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ एवरीवन, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਨਸਨੀ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟਰਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਫਰਟਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਕਈ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀ canadianbazaar.com ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ आई है जड़ा ही बड़ा ही दुखद है और तुहाडे सारियां नाल डिस्कशन करना बहुत जरूरी सी कि पिछे ब्रैम्पटन तो आके ग्रेटर टोरंटो विच 18 तो लैके 24 साल दी कुड़ियां दी ह्यूमन सैक्स ट्रैफिकिंग शुरू हुई है, जो कि बड़े टाइम तो चल रही है कि और ए लड़कियां जो कि दी कैनेडियन बाजार ने लिखा है कि ए जड़ियां लड़कियां नू मिसयूज किया जाता है एजुकेशनल कैंपस तो, स्ट्रीट कॉर्नर्स तो, बस स्टॉप्स तो, वर्क प्लेस तो और ईवन रिलीजीयस प्लेसिस तो, जिथे बच्चे जाते ने जो उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं मिलता, सहारा नहीं मिलता, इमोशनली टुटे होंदे ने बच्चे। तो उदों इन्हां लड़कियां नू एक ग्रुप बनिया होया सी जिथे उधर दी गवर्नमेंट ने ब्रैम्पटन तो जो इस रिपोर्ट विच दस्सिया गया कि 3 लोगों नू अरेस्ट भी किया गया और जिहड़े 3 आदमी अरेस्ट किए गए उदों 3 लड़के अरेस्ट किए गए वो भी बड़ी अच्छी फैमिलियां दे सी और वो लोग 2 लाख पर ईयर डॉलर इन्हां कुड़ियां दे थ्रू कमा रहे सी। और एक मेडिकली रिपोर्ट विच लिखा गया है कि 10 तो 12 एबॉर्शन हर महीने उत्थे हो रहे ने, ਜਿਹੜੇ कि 100% चो 85% बच्चे वो साडे पंजाब दे ने। यह बहुत दुखद है, यह जिहड़ी रिपोर्ट है यह एक हिलान वाली है साडे पंजाब वास्ते कि पेरेंट्स नू या तो बच्चे शेयर नहीं करते, उधर जाके जो स्ट्रेस फेस कर रहे ने, उधर जाके जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे ने और जो साडियां बच्चियां दा शोषण हो रहा है। तो मैं अज अपने मीडिया राही पंजाब दे जिन्नी भी कम्यूनिटी मीडिया दी या लोग उधर जुड़े हुए ने एक अपील करना चाहनी हाँ कि जे साडी बच्चियां नू उधर उन्हां दा शोषण हो रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, गंदे काम करन वास्ते मजबूर किया जा रहा है या जड़ियां विचारियां इमोशनली टुट भी जांदियां ने, मजबूर हो जांदियां ने। तो मैं उधर जड़ियां समाज सेवी संस्थावां ने या जड़े लोग उधर वैल सैटल ने उन्हां नू अपील करदी हाँ कि या ते उधर दी हाई कमीशन दे थ्रू तुसी मदद ली गुहार लगाओ, साडे थ्रू भी तुसी सानू भी अपील कर सकते हो, आपां भी विदेश मंत्रालय थ्रू तुहाडी हेल्प करन दी कोशिश करांगे। पर यह जो हो रहा बहुत दुखद है, साडी बच्चियां लई बहुत दुखद है, साडे पंजाब लई बहुत दुखद है। और एक मैसेज भी है जो मैं आज जाके जिहड़ी कैनेडियन दी जिहड़ी रिपोर्ट बाजार कैनेडियन बाजार उधर दा एक प्रोमीनेंट न्यूज़पेपर है उनकी रिपोर्ट तुहाडे नाल शेयर कर रही हाँ। तो यह मामला बड़ा संजीदा है। मेरी गुजारिश है पेरेंट्स नू कि जे तुसी अपने बच्चों नू कॉन्फिडेंस विच लो और पूरा सपोर्ट सिस्टम जे बच्चों नू तुसी मन बना ही लिया बाहर भेजन दा, भेजदे ही हो, एक पूरा सपोर्ट सिस्टम इमोशनली बच्चों ते नज़र भी रखो और उन्हां दे नाल भी जुड़े रहो। उस तरह उधर दे बच्चों नू अपील है, बेटियां नू अपील है, जे तुसी फेस कर रही हो इदां दी प्रॉब्लम और इस दलदल चों निकलना चाहदियां हो, खास तौर ते 18 तो 24 साल दी कुड़ियां ने। और जिहड़ा मैंशन मैडिकल रिपोर्ट की गई है यह बहुत दुखद है। साडे नाल कॉन्टैक्ट करो। उम्मीद करदी हां आने वाले समय चीज़ां दी तरफ उधर दी गवर्नमेंट या उधर दे जिहड़े इंडियन सोसाइटी दे लोग ने, जिहड़ियां गैर समाज सेवी संस्थावां ने जुड़ियां होईयां ने, साडी हैल्प करनगियां और मेरी अपील ते गौर करनगियां। थैंक यू। वेलकम जी आया नु। कल कांग्रेस पार्टी ने एक बयान दिया और कहा कि पंजाब में 3 मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे कांग्रेस पार्टी के और वो 3 मुख्यमंत्री बनाएगी 2022 के इलेक्शंस में अगर उन्हें जीत मिलती है तो। पहले मुख्यमंत्री होंगे सुनील जाखड़,
दूसरे मुख्यमंत्री होंगे नवजोत सिंह सिद्धू, तीसरे मुख्यमंत्री होंगे चरणजीत सिंह चन्नी। अब आप सोचिए कि अगर ये 3 लोग मुख्यमंत्री बनते हैं या ये 3 लोग मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं तो सरकार कैसी चलेगी। कांग्रेस पार्टी इतनी आपस में लड़ लड़ के खत्म हो गई है कि आज उनके पास हर चीज में, हर ओहदे के लिए लड़ाई ही लड़ाई है। अगर ये 3 सीएम पद के उम्मीदवार बनते हैं तो सीएम कौन बनेगा। क्या इसका यह मतलब है कि चरणजीत सिंह चन्नी साहब को सिर्फ एक नाइट वॉचमैन की तरह इंटरम अरेंजमेंट के तहत सीएम बनाया गया, उनका इस्तेमाल किया गया। वो एक स्पेसिफिक भाईचारे से आते हैं, उन्हें अपीज करने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया और अब कांग्रेस आज उन्हें छोड़ रही है और कह रही है कि हम अपना सीएम या सुनील जाखड़ को बनाएंगे या नवजोत सिंह सिद्धू को बनाएंगे। तो क्या चन्नी साहब को सिर्फ इस्तेमाल करने की, यूज करने की मंशा थी कांग्रेस पार्टी की? क्या चन्नी साहब के साथ कांग्रेस पार्टी ने यूज एंड थ्रो किया है? मैं कल कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन, राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब के बयान का जिक्र कर रहा हूं। कल उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का 3 मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील जाखड़ और चरणजीत सिंह चन्नी। इसका मतलब साफ है कि चन्नी साहब सिर्फ एक नाइट वॉचमैन थे, उन्हें इस्तेमाल किया गया और अब कांग्रेस पार्टी उन्हें छोड़ रही है, किसी और को आने वाले इलेक्शंस में चेहरा बनाकर आगे लाएगी। और आप खुद ही सोचिए कि कितनी इंस्टेबिलिटी होगी सरकार में अगर ये चारों लोग आपस में मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई लड़ते रहे। कांग्रेस पार्टी आज के समय पूरे पंजाब में लड़ लड़ के खत्म हो गई है। किसी भी नेता की एक दूसरे नेता से अपनी पार्टी में नहीं बनती कांग्रेस पार्टी, किसी से नहीं बनती कांग्रेस पार्टी में। सब एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, सब एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कुछ नाम अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा और आपको पढ़ने के बाद यह यकीन हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी में किसी से नहीं बनती है और कांग्रेस पार्टी एक मैड फाइट हाउस बन गया है जिसपे सिर्फ लोग आपस में लड़ाइयां लड़ते हैं। एक रेसलमेनिया बन गई है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में नवजोत सिंह सिद्धू की चरणजीत सिंह चन्नी साहब से नहीं बनती, चरणजीत सिंह चन्नी साहब की सुनील जाखड़ से नहीं बनती, सुनील जाखड़ साहब की प्रताप सिंह बाजवा से नहीं बनती, प्रताप बाजवा साहब की नवजोत सिंह सिद्धू से नहीं बनती, भारत भूषण आशु की नवजोत सिंह सिद्धू से नहीं बनती, भारत भूषण आशु की राणा केपी से भी नहीं बनती, ओपी सोनी की नवजोत सिंह सिद्धू से नहीं बनती, नवजोत सिंह सिद्धू की रमिंदर आंवला से नहीं बनती, चरणजीत सिंह चन्नी की रवनीत बिट्टू से नहीं बनती, बिट्टू साहब की सिद्धू साहब से नहीं बनती, मनप्रीत बादल की नवजोत सिंह सिद्धू से नहीं बनती, परगट सिंह की रवनीत बिट्टू से नहीं बनती, राजकुमार वेरका की राजा वड़िंग से नहीं बनती, राजा वड़िंग की मनप्रीत बादल से नहीं बनती, नवजोत सिंह सिद्धू की सुखी रंधावा से नहीं बनती, सुखी रंधावा की राणा गुरजीत से नहीं बनती, राणा गुरजीत की नवतेज चीमा से नहीं बनती, राणा केपी की बरिंदर ढिल्लन से नहीं बनती, बरिंदर ढिल्लों की सिद्धू मूसेवाले से नहीं बनती, प्रताप सिंह बाजवा की सुखी रंधावा से नहीं बनती, नवजोत सिंह सिद्धू की सुनील जाखड़ से भी नहीं बनती, सुनील जाखड़ की चरणजीत सिंह चन्नी से नहीं बनती, रवनीत बिट्टू की सिद्धू से नहीं बनती, मनीष तिवारी की भी नवजोत सिंह सिद्धू से नहीं बनती, रवनीत बिट्टू की मनीष तिवारी से नहीं बनती है, तृप्त बाजवा की अश्विनी सेकड़ी से नहीं बनती, सुखपाल खेरा की राणा गुरजीत से नहीं बनती, मनीष तिवारी की चरणजीत सिंह चन्नी से नहीं बनती है, गुरजीत सिंह औजला की नवजोत सिंह सिद्धू से नहीं बनती है, परनीत कौर की नवजोत कौर सिद्धू से नहीं बनती। और ये सब देख के पंजाब के लोगों ने यह मन बना लिया कि अब पंजाब के लोगों की कांग्रेस पार्टी से नहीं बनती है। इतनी लड़ाई कांग्रेस में चल रही है, हर एक शख्स एक दूसरे से लड़ रहा है, लड़ाई लड़ के उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर दिया, पूरी कांग्रेस पार्टी को तोड़ दिया। आज कांग्रेस पार्टी पूरी बिखर गई है पंजाब में और इतनी टूट गई है, इतनी तबाह हो गई है
कांग्रेस पार्टी कि आज पंजाब में कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट बर्बाद करने जैसा है। इतनी लड़ाई के बाद मैं पंजाब की आवाम से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि अपना कीमती वोट आप कांग्रेस पार्टी को देकर बर्बाद मत करिएगा। कांग्रेस खत्म हो गई है। कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट बर्बाद मत करिएगा। अपना वोट एक स्टेबल और एक स्ट्रांग गवर्नमेंट के लिए, एक स्थिर और एक मजबूत सरकार के लिए आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को दीजिएगा। जहां पर लड़ाई नहीं प्यार है, जहां पर झगड़ा नहीं अमन शांति और भाईचारा है। मेरी ये अपील पंजाब की आवाम से। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे भी कोरोना हो गया था और लगभग 7-8 दिन में होम आइसोलेशन में रहा। आप सबकी खूब दुआएं मिली, आपका खूब आशीर्वाद मिला, आपकी सबकी शुभकामनाएं आ रही थी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। मुझे लगभग 2 दिन बुखार रहा, उसके बाद मैं ठीक था लगातार, लेकिन जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से मैं 7-8 दिन होम आइसोलेशन में रहा। अब मैं वापस आप सबकी सेवा में हाजिर हूँ। आप सब लोगों की शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दिल्ली में जो कोरोना की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, उसको लेके मैं हमेशा से चिंतित था। हालांकि मैं होम आइसोलेशन में था, लेकिन फ़ोन के ऊपर मैं लगातार अपने सभी ऑफिसर्स से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, हेल्थ मिनिस्टर से, सबसे लगातार संपर्क में था। जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं और जिस तरह से कोरोना की स्पीड बढ़ रही है उसके ऊपर मैं नज़र रखे हुए था। दिल्ली के अंदर जो कोरोना की, पूरे देश में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, दिल्ली में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं देख रहा था कि कल वाला जो हेल्थ बुलेटिन था उसमें लगभग 20,000 के करीब केसेस आए थे, और आज शाम को जो हेल्थ बुलेटिन आएगा उसमें लगभग 22,000 केसेस, पिछले 24 घंटे के 22,000 केसेस आएंगे। तो डेली बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय तो है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था, घबराने की बात नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ घबराने की बात नहीं है, तो मैं सारा डेटा एनालाइज करके बोल रहा हूँ। पिछली जो वेव आई थी अप्रैल मई में, उसमें 7 मई को इतने ही डेली केसेस आते थे, 20,000 के करीब। जैसे अभी 20,000 केसेस आए, कल 20,000 केसेस पर डे डेली केसेस आए। 7 मई को भी 20,000 केसेस आए थे पिछली वेव में, लेकिन 7 मई को 341 मौतें हुई थी। 341 मौतें। लेकिन कल जब 20,000 केसेस आए हैं तो 7 मौत हुई हैं। एक भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंपैरिजन में केवल 7 मौत हुई हैं। 7 मई को जब 20,000 केसेस आए थे तो लगभग 20,000 बेड्स दिल्ली में भरे हुए थे। लेकिन कल जब 20,000 केसेस आए हैं तो लगभग 1,500 बेड केवल दिल्ली में भरे हुए हैं। तो उस तरह से इस वेव के दौरान डेथ भी काफ़ी कम हो रही हैं और लोगों को अस्पताल जाने की भी काफ़ी कम ज़रूरत पड़ रही है। ये डेटा मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि इसलिए अब हम मास्क पहनना बंद कर देंगे और गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। ये डेटा मैंने आपको इसलिए बताया कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो अभी थोड़े दिन, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फ़िलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वेव ख़त्म हो। और कोशिश हमारी है कि
कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं ताकि लोगों के रोज़ी रोटी चलती रहे, लोगों के रोज़गार चलते रहें। एलजी साहब और मैं दोनों मिलके पूरी सिचुएशन को लगातार हम लोग नज़र रखे हुए हैं। कल हमारी डीडीएमए की दोबारा मीटिंग है, उस मीटिंग में एक्सपर्ट्स के साथ फिर से हम रिव्यू करेंगे सिचुएशन को कि क्या और करने की ज़रूरत है नहीं है। केंद्र सरकार से लगातार हम लोग संपर्क में हैं, केंद्र सरकार से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। तो सब लोग मिलके, मैं, एलजी साहब, हमारे सारे ऑफिसर्स, केंद्र सरकार, सब लोग मिलके सिचुएशन के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और सिचुएशन को कंट्रोल किए हुए हैं। पहले भी हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके कोरोना की इतनी बड़ी, इतनी ख़तरनाक लहर थी जो अप्रैल वाली थी, उसको हमने पार पा लिया। तो इस लहर को भी हम लोग पार पा लेंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। और जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया, प्लीज़ जाके वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए। वैक्सीन लगाने से मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना अगर हुआ तो आपको कम माइल्ड कोरोना होगा, आपकी जान को खतरा नहीं होगा, आपको अस्पताल हो सकता है जाने की ज़रूरत ना पड़े। नमस्कार। सिद्धू साहब सत श्री अकाल जी। कल भाईजान सिद्धू साहब, अगली 14 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਅੱਜ 9 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਭਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਭਗ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਬੰਧਨ ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਗੀ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਿਕ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਅਰ ਵਿਦ ਮੀ, we are at it. Even today the screening committee meeting is going on. We will take our decisions after careful thought. The Congress always, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ। We don't want to divulge it through the media, but I think we need to focus on the issues today. ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਡਾਈਗਰੈਸ ਕਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੱਪੜ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਅਸ to pull back people on issues and ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਇਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾ ਉਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰੇ ਚਾੜਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ 50 ਲੱਖ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ 40-40 ਕਰੋੜ, ਮਤਲਬ 200 400 ਗੁਣਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। even today I think there is no way out. We will have to move towards digital Punjab, whether it is a single window system, whether it is entrepreneurship, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣੇ, ਚਾਹੇ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਵਾਣੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਔਰ ਕਈ ਰਾਜ ਨੇ ਐਸੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਟੈਕਸ ਹੈਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਡੀਮਡ ਟੂ ਬੀ ਪਾਸਡ once they put in their request on the computer. So we are headed in that direction
ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਪਦਾ ਆ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਉਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। Therefore, I think it is very important that we prevent and prepare rather than repent and repair. ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ we were repenting and we were repairing rather than preventing and preparing. So I think the Congress party has taken the first initiative of preparing, and with that preparedness we will be preventing. थैंक यू। मैं आमंत्रित करती हूँ कंचन वासुदेव जी को और उन्हें अनम्यूट आप अपने आप को करिए। कंचन जी सवाल कीजिए। हाँ जी, करिए शुरू। बहुत मेहरबानी सारिਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਸਰ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, BSP ਤੋਂ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜੂ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ, ਸਰ ਬੋਗ ਸਿੰਘ, ਸਰ KS ਸੇਖੋਂ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਿਸਟਰ ਰਾਜੂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਮਲ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਸਾਬਕਾ IAS, ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ, ਦੀਪਕ ਚਨਾਰਥਲ ਤੇ ਸਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ 3 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ 7307600055। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ 7307600055। ਇੱਕ ਹੈ ਸਰ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ 8146918347 8146918347। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ 9914302000 9914302000। तो ये ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਝਲੂੜੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਚੜੂਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੜੂਨੀ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਉਗਰਾਹਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਰਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਣ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਖੋਗੇ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੂਗਾ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪੋ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਝਾਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ।
नहीं इदां दी कोई गल नहीं। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 10 ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਸੀ 90 ਸੀਟਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਨ नहीं ये तुसी ਐਵੇਂ ਬੇਸਲੈਸ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾ ਚੁੱਟਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ से भी सवाल ले लीजिए सर। जी। 2 सवाल हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो आ रहा है बार बार कि किसानों ने किया, उस पे आपने देखा होगा कि बयानबाजी भी हो रही है। दूसरा, आज उन्होंने वीर बाल दिवस घोषणा की है। दोनों चीजों पे आपसे राय जानना चाहते हैं। बड़ा स्पष्ट है किसानों का ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसीज का रोल है। सिक्योरिटी एजेंसीज की जांच होनी चाहिए किने की किया, कौन दोषी है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ मैं ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉੜੱਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।